الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، آج 8 ربیع الاول 1443 ہجری ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے ربیع الاول وہ بابرکت والا مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے کے اندر دونوں جہاں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر خاص فضل، احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم خاتم الکتب ہے، اور اسی طریقے سے یہ امت خاتم الامم ہے۔ خاتم الانبیاء ہونے کا مطلب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ 1400 سال سے لے کر آج تک اور آئندہ قیامت تک اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، نئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور خاتم الکتب ہونے کا مطلب یہ جو قرآن کریم ہے آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بعد اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اور خاتم الامم ہونے کا مطلب یہ جو امت ہے یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد اب کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور حضور کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 2.5 یا 3 ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ملک شام سے تقریباً 15 کلومیٹر یا 1500 کلومیٹر دور وہ سنگلاخ اور پہاڑی والا علاقہ ہے، وہاں پر جا کر آپ ایک شہر بسائیے اور اپنے لخت جگر اور اپنی بیوی
اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ساتھ لے کر وہاں پر چھوڑ آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ساتھ لے کر ملک شام سے روانہ ہوئے اور جا کر مکہ المکرمہ کے اس سنگلاخ علاقے کے اندر چھوڑ آئے اور وہاں سے واپس آ گئے، اور چند عرصہ گزرنے کے بعد پھر واپس گئے، اور پھر وہاں پر حکم خداوندی اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا، اس کی تعمیر کی، اور وقت گزرتا گیا وہاں پر ایک چھوٹا سا قبیلہ بن گیا، پھر وقت گزرتا گیا وہاں پر ایک بڑا شہر بن گیا، اور جب وہاں پر انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل کر لی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے باری الہی رب اجعل هذا بلدا آمنا، آپ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے اس شہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو تازہ پھل عطا فرما۔ 1400 سال پہلے آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے تقریباً 2,500 یا 3,000 سال پہلے آپ علیہ السلام کے لیے یہ شہر بسایا گیا، تیار کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی اس مقدس اور بابرکت والی جگہ میں بھیجا ہے جس کو ہم اور آپ مکہ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام قوموں میں سے اس قوم کے اندر بھیجا ہے جس قوم کو امی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کے اندر بھیجا اور امیوں کے اندر بھیجا، اور اپنے اس انتخاب کا خود اعلان فرمایا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم۔ انسانیت کی روح کانپ اٹھی اور چیخنے لگی اور سوال کرنے لگی، اے باری الہی آپ کے اس انتخاب پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دل کو اطمینان کیسے ہو جائے؟ دل کا اطمینان چاہتے ہیں، آپ کے اس انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں ہے، دل کا اطمینان چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں کے اندر یعنی ان پڑھوں کے اندر کیوں بھیجا؟ ہم صرف دل کا اطمینان چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا جواب دیا؟ اور فرمایا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے 4 مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کے منصب جلیلہ کے جو بڑے 4 کام ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد لوگوں کو میری آیات پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے، آیات پڑھ کر یاد کروائے اور اس کی حکمت بیان کر کے ان کے سامنے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔
इंसानियत की रूह कांप उठी और सवाल करने लगी, ए बारी इलाही, आपके इस इंतखाब पर हमें कोई एतराज नहीं है। दुनिया के अंदर तो अनपढ़ों के अलावा, उम्मियों के अलावा अनपढ़े लिखे लोग भी मौजूद थे, अनपढ़ भी मौजूद थे, दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे ज़हीन और होशियार लोग भी मौजूद थे। आपने अपने आखिरी नबी को उन पढ़े लिखे लोगों के अंदर क्यों नहीं भेजा? सवाल आया कि कौन है पढ़े लिखे लोग? तो कहने लगे कि उस वक्त दुनिया की जो बड़ी दो ताकतें मौजूद थी, एक रोम की बड़ी हुकूमत मौजूद थी और दूसरी एक और ताकत मौजूद थी। आपने आखिरी नबी को उन पढ़े लिखे लोगों के अंदर क्यों नहीं भेजा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और किस अंदाज के अंदर बयान फरमाया कि कौन है पढ़े लिखे लोग? तो कहा गया कि ये यहूदी तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है और धूल मची हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कौन है पढ़े लिखे लोग? ये यहूदी। फरमाया, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। ये यहूदी बख्त जिनको मैंने एक खास अपनी एक नियामत अता फरमाई थी, जिनको मैंने तौरात अता फरमाई थी, मगर उन्होंने उस तौरात को कबूल नहीं किया। उनकी मिसाल ऐसी है कि उन पर उस तौरात को लादा गया है। उनकी मिसाल इस तरह है जैसे कि गधे के ऊपर अगर किताबें लाद दी जाएं, लेकिन वो गधा उनसे किताबों से फायदा हासिल नहीं करता है। इन यहूदियों की मिसाल उस गधे जैसी है। इन यहूदियों के दरमियान में अपना आखिरी नबी भेजूं। फिर आगे से कहा गया कि ईसाई तो मौजूद थे, वो भी पढ़े लिखे इंसान थे, उनके अंदर अपने आखिरी नबी को क्यों नहीं भेजा? तो कहा गया, कौन है ये ईसाई? ईसाइयों के अंदर क्यों नहीं भेजा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये बदबख्त ईसाई जिनको मैंने अपनी एक खास नियामत अता फरमाई थी, जो जिसको इंजील कहा जाता है, और इन्होंने इंजील के साथ वो मुआमला किया जो यहूदी भी नहीं कर सके। इन्होंने इंजील के साथ वो मुआमला किया कि अपने दीन के अंदर कुछ नई बातें पैदा करने लगे। यहूदी तो जानबूझकर अपने दीन को छोड़ बैठे, और यहूदियों ने क्या काम किया? यक्तुबून अल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यकूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। यहूदी क्या काम करने लगे? अपने हाथों से किताबें लिखने लगे और कहने लगे ये सब अल्लाह की तरफ से है। और युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही, और उन्होंने युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही, और उन्होंने बातों को अपनी जगह से हटा दिया। और ईसाइयों ने क्या काम किया? दीन के अंदर नई बातें पैदा करने लगे। तो मैं इन ईसाइयों के अंदर, यहूदियों के अंदर अपने रसूल को कैसे भेजूं? और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत बयान फरमाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं इस दुनिया के अंदर अपने हबीब को क्यों भेज रहा हूं? क्योंकि वो वक्त आ चुका है कि अब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा काम बनने वाला नहीं है। इंसानियत भटकते भटकते, गलत काम करते करते उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से अब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और वापस नहीं ला सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। कि इंसानियत भटकते भटकते गुमराही के रास्ते पर चलते चलते वहां पहुंच चुकी है कि वापस नहीं आ सकती। यहां तक कि उन लोगों के पास अल्लाह की तरफ से हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, अल्लाह की तरफ से कोई जबरदस्त दलील ना आ जाए। पूछा गया वो क्या जबरदस्त दलील है? फरमाया, रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफन मुतहहरा। अल्लाह का वो अजीमुल शान पैगंबर जब तक ना आ जाए और वो ऐसी बाबरकत और अजमत वाली किताब लेकर ना आ जाए जिस किताब की एक एक आयत एक एक किताब है। मेरे दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाने से तकरीबन 2,500 या 3,000 साल पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए यह शहर बसाया गया, मक्कातुल मुकर्रमा।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जमाना गुजरता गया 2,500-3 हजार मुकम्मल हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार बन गए और वहां पर बाहर से जो लोग हज करने के लिए आते थे, तवाफ करने के लिए आते थे, उनके लिए जो खाने पीने का इंतजाम करना होता था वो सारा का सारा अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में था। लेकिन वहां पर इंतजाम करने में जो पानी इस्तेमाल होता था, पीने के लिए इस्तेमाल होता था, वुज़ू वगैरह में जो पानी इस्तेमाल होता था, मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर वो पानी नहीं मिलता था, बल्कि बाहर से ऊंटों पर लाद कर लाना होता था, जिसके अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुश्वारियां आती थी, परेशानियां आती थी। इस वजह से वो बहुत परेशान थे। एक रात उन्होंने ख्वाब के अंदर देखा कि एक आदमी उनसे कह रहा है, ए अब्दुल मुत्तलिब आप जमजम के कुएं को खोद डालिए, ए अब्दुल मुत्तलिब आप जमजम के कुएं को खोद डालिए। और साथ में वो आदमी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब के अंदर कहता है कि सुबह जब आप बेदार होंगे और खाने काबा के साथ बैतुल्लाह के पास में जहां पर आप एक कौवे को कुरेदते हुए, एक कौवे को ठूंगे मारते हुए देखेंगे, आप समझ जाना वहीं पर जमजम का कुआं है। क्योंकि 2,500 या 3,000 साल पहले बनु जुरहम एक कबीला था, उन्होंने जमजम के कुएं को बंद कर दिया था। 2,500-3 हजार साल की वजह से उस कुएं के नामो निशानात खत्म हो गए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये सारा का सारा ख्वाब देखा। सुबह बेदार हुए, परेशान है कि मैंने ये क्या ख्वाब देखा है। बैतुल्लाह के पास गए, वहां पर देखते हैं कि एक कौवा बैतुल्लाह के पास में ठूंगे मार रहा है। उनको यकीन हो गया कि यह ख्वाब सच्चा है और अब उन्होंने ये इरादा कर लिया और पुख्ता इरादा कर लिया कि अब मैं जरूर कुएं को खोदूंगा। और उनके उस वक्त बड़े बेटे हारिस, एक ही बेटा हारिस थे, उन्होंने उनको साथ में लिया और बैतुल्लाह के पास जाकर उस कुएं को खोदने लगे। और जब कुआं खोद रहे थे, कुरैशे मक्का वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब खुदाई का काम कर रहे हैं। सवाल किए, अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, जमजम का कुआं खोद रहा हूं। लोगों ने कहा कि जमजम का कुआं आज से 2,500-3 हजार साल पहले बंद हो चुका है, उसके नामो निशानात खत्म हो चुके हैं, आपको कैसे मालूम यहां पर जमजम का कुआं है? अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात नहीं सुनी और काम में लगे रहे। यहां तक कि खुदाई करते करते अबिल आखिर जमजम का कुआं निकल गया, वहां से चश्मा फूट गया। लोगों ने जब ये देखा हैरान और शशतर रह गए, परेशान हो गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बुजुर्गी को तस्लीम कर लिया। जब वहां पर काम कर रहे थे, उनके दिल के अंदर एक बात आई कि काश आज मेरे ज्यादा 2-4 बेटे और होते जो मेरे साथ काम में मेरी मदद करते, ताकि मुझे किसी दूसरे के पास मदद लेने की जरूरत न पड़ती। और साथ में उन्होंने एक मन्नत मानी कि या बारी इलाही, और दुआ की, ए बारी इलाही अगर आप मुझे 10 बेटे अता फरमाएंगे तो उनमें से मैं एक बेटे को आपके नाम पर ज़बाह करूंगा। वक्त गुजरता गया, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता फरमाए। जमजम का कुआं निकल गया, वहां से लोग पानी इस्तेमाल करते रहे और उस वक्त से लेकर आज तक उस कुएं से पानी निकल रहा है। सारी कायनात के इंसान वहां जाकर पानी पीते भी हैं और वहां से अपने घरों को जमजम का पानी लाते भी हैं। उस वक्त से लेकर आज तक उस कुएं के अंदर कोई कमी नहीं आई है और न क़यामत तक उस कुएं के अंदर कमी आएगी। वक्त गुजरता गया, 10 बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बड़े हो गए। उनको अपनी वो मन्नत याद आ गई कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला से मन्नत मानी है कि अगर 10 बेटे अल्लाह ने मुझे अता फरमाए तो एक बेटे को मैं अल्लाह के नाम पर ज़बाह करूंगा। उन्होंने अपने 10 बेटों को जमा किया और अपना सारा का सारा ख्वाब सुनाया कि यूं यूं मैंने अल्लाह से मन्नत मानी है, अब क्या करना है? तमाम बेटों ने यक जुबान होकर जवाब दिया, ए अब्बू जान आप जो चाहें कर गुजरिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक तरफ से अपने बेटों का नाम 10 बेटों का कुर्रा डाला,
जिनके अंदर इत्तिफाक से उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम आया। उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं अब्दुल्ला को अल्लाह के नाम पर ज़बह कर दूंगा। हाथ में छुरी ली, अपने बेटे को हाथ से पकड़कर ले जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला को ऐसा हसीन और जमील बनाया था, ऐसा किरदार और ऐसे अखलाक अता फरमाए थे, जैसे ही मक्का के अंदर ये खबर मशहूर हुई कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहे हैं, पूरे मक्का के अंदर कोहराम बर्पा हो गया। खास करके उनकी जो बहनें थी, उनकी जो फूफियां थी, वो रोने लगी और कहने लगी हमारे भाई को ज़बह कर दिया जाएगा, रोने लगी। बिल आखिर एक आदमी ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप इस अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए कोई और हल निकालिए। और साथ में बताया कि हमने सुना है कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर एक काहिना, पढ़ी लिखी नुजूमी औरत है, काहिना औरत मौजूद है। आप मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जाइए और इसके बारे में उस औरत से कोई मसला पूछिए कि क्या किया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मदीनतुल मुनव्वरा से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि आपका जो नानिहाल था वो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर था। आप वहां से फौरन मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। वहां पर जाकर उस काहिना औरत से मुलाकात की, पूरा सारा का सारा वाकया बयान किया। उस औरत ने पूछे, अब्दुल मुत्तलिब, आपके यहाँ पर एक आदमी की दियत कितनी होती है? यानी जब किसी आदमी को कत्ल किया जाए उसका बदला कितना है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा 10 ऊंट। उस औरत ने जवाब दिया कि आप एक काम करो, वापस मक्कतुल मुकर्रमा वापस जाओ। वहां जाने के बाद एक तरफ से 10 ऊंटों का नाम रखो, एक तरफ से अपने बेटे का नाम रखो। अगर कुर्रा 10 ऊंटों का निकलता है तो 10 ऊंटों को अपने बेटे के बदले में ज़बह कर दो, और अगर कुर्रा तुम्हारे लड़के के नाम निकलता है, बच्चे के नाम निकलता है, तो तुम 10 ऊंटों पर 10 और ऊंट बढ़ा दो, फिर कुर्रा अंदाजी करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मदीनतुल मुनव्वरा से वापस मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लाए। आते ही उन्होंने एक तरफ से 10 ऊंटों का नाम रखा, एक तरफ से अपने बेटे अब्दुल्ला का नाम रखा, तो कुर्रा जो निकला हजरत अब्दुल्ला का नाम का निकला। उन्होंने 10 ऊंटों पर 10 ऊंट और बढ़ा दिए, फिर भी कुर्रा जो है अब्दुल्ला के नाम निकला। यूं करते करते वो 10-10 ऊंट बढ़ाते गए, यहां तक कि 100 ऊंट मुकम्मल हो गए। उस वक्त जाकर ऊंटों के नाम कुर्रा निकला। तो इसी तरीके से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे के बदले में 100 ऊंटों को अल्लाह के नाम पर ज़बह किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबुव्वत से सरफराज किया गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से फरमाया करते थे कि मैं 2 ज़बह होने वालों का बेटा और लख्ते जिगर हूं। एक तो मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला है और दूसरे हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम हैं। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि जैसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाने का वक्त करीब आता गया, वैसे ही इस दुनिया के अंदर कुछ अजीब व गरीब बातें पेश आने लगी, अजीब व गरीब वाकयात पेश आने लगे। इन्हीं वाकयात के अंदर एक बड़ा वाकया फील है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर तफसील के साथ 30वें पारे के अंदर बयान फरमाया है। बिल आखिर वो वक्त भी आ गया कि जिस वक्त के लिए सूरज गुरूब हो रहा था, तुलू हो रहा था, जिसके इंतजार में आसमान पर सितारे बैठे हुए थे, जिनके लिए तकरीबन 1 लाख से जायद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरी दी थी, और जिनके लिए 2,500-3 हजार साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की चादर को पकड़कर अल्लाह से दुआ फरमाई थी, ए बारी इलाही, यहाँ का जो जमात है, यहाँ के जो लोग हैं, इन्हीं लोगों में से यहाँ पर एक नबी को मबूस फरमाइए, जो नबी इस दुनिया के अंदर आने के बाद इन लोगों की आपकी आयात पढ़ कर सुनाए, आपकी आयात की हिकमतें बयान करके सुनाए, आपकी कुरान की तालीम इन लोगों को दे और इन लोगों का तज़किया करे, इनके दिलों का तज़किया करे। बिल आखिर इस दुआ के कबूल होने का वक्त आ गया था, और पौने 600 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस नबी की बशारत दी थी, वह मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अपनी कौम से कहा था, बे आपको एक बड़े
नबी की खुशखबरी देता हूँ, जबरदस्त रसूल की खुशखबरी देता हूँ जो मेरे बाद इस दुनिया के अंदर आने वाले हैं, जिनका नाम अहमद होगा। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया कि बतारीख 8 या 9 रबीउल अव्वल है, और ये तारीख के अंदर 12 का भी आया है, लेकिन 8 या 9 रबीउल अव्वल का ज्यादा है कि 8 या 9 रबीउल अव्वल मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी को सुबह के वक्त में नमाज फजर का वक्त है, रात अपनी तारीकी को समेट रही है, रात खत्म हो रही है और दिन का उजाला आंखें खोल रहा है, दिन शुरू हो रहा है। उस वक्त में दोनों जहां के सरदार रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आमिना के लाडले हजरत अब्दुल्ला के लख्त जिगर, सही रिवायत के मुताबिक अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला की वफात से 3 महीने के बाद अपने चाचा अबू तालिब के घर के अंदर इस दुनिया को गुमराही में डूबी, इस गुमराही के अंदर इस इंसानियत को गुमराही से निकालने के लिए, हिदायत के नूर से इस कायनात को मुनव्वर करने के लिए इस दुनिया के अंदर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त तशरीफ लाए हैं। मेरे दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है ये वही बाबरकत और मुकद्दस महीना है जिस मुकद्दस महीने के अंदर हमारे और आपके सारी कायनात के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी सीरत को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।